Hello everyone, welcome back to Shirama IAS. In today's 1PYQ a day series, we are going to discuss internal security question. Before starting with the question, you can avail a free one-on-one mentorship by clicking on the link given in the description. So here is the question. This question appeared in year 2025. Okay, 2025. Question is for 15 marks, 250 words. Question is quite simple, straightforward, and again it's more on a factual side. The question is, what are the major challenges to internal security and peace process in the northeastern states? Question mark. Map the various peace accords and agreement initiated by the government in the past decades. तो दो पार्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल, what are the challenges? Major, of course, internal security and peace process. Focus area is northeastern state. Map the various peace accords. The directive used is a map. First time use हुआ है, I do understand. But देखिए, जब हम मैप ड्रॉ करते हैं, so basically what you do, you delineate various aspects in a detailed, precise manner. है ना? मैप क्या होता है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. कोई देखेगा समझ जाएगा कि अच्छा ये चीज़ करनी थी. सेम वे आपको थोड़ा डिस्क्राइब करना है ना, वेरियस पीस अकॉर्ड्स एंड एग्रीमेंट्स. मैप इज अ न्यू डायरेक्टिव. इसका मतलब ये नहीं कि कुछ ज़्यादा ही मतलब उसमें अलग करना ही. नो, यू टू डिस्क्राइब, डिलिनिएट जो हम बोलते हैं. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड. So when you talk about an introduction, somewhere we understood the question is revolving around the northeast insurgency. एक तो आप ओरिजिन के बारे में लिख दीजिए कि नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ज्योग्राफिक, हिस्टोरिक एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. उसके अलावा इफ यू नो सर्टन फैक्ट्स लाइक देयर इज अ 76% रिडक्शन, है ना, 2014 से 2022 तक. इफ यू लुक एट दिस टाइम फ्रेम, this reduction of insurgency, 76% insurgency reduction हुआ है. Also within that, if we talk about this northeast insurgency, almost 77% still is from the Manipur. Government data basically है ना. There is nothing special about it. ये government data and that is how it is. So if you know the facts, write it down. Or maybe simply you can talk about a socio-economic status of the northeastern state along with the mixed ethnicity is causing a continuous trouble for the internal security and peace process of the northeastern state. Contextualize करने की कोशिश की जा सकती है. ठीक है. Either way, if you're comfortable, write those as an introduction. Then, major challenges across the internal security and peace process. Now there is one document released by the Ministry of Home Affairs. तो बेसिकली यहाँ से कुछ जो हेडिंग्स है, आई पिक्ड इट फ्रॉम देयर. इसके अलावा स्टैंडर्ड चीज़ें हमें पता है ना. एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वहाँ पे भी होता है, ड्रग मीनास, डेवलपमेंटल इश्यूज, पोलराइजेशन, बहुत सारे इश्यूज है. बट हाउ दे डिवाइडेड इट, अ नेशनल कॉन्फ्लिक्ट जैसे सेपरेट स्टेटहुड, हाँ, सेपरेट स्टेट, या फिर आप बोल सकते हैं लैंड. बेसिकली दे आर डिमांडिंग इट, है ना. तो बोडोलैंड मांग लिया, ग्रेटर नागालिंगम, सेपरेट. एक नेशनल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं विच इज पोजिंग अ चैलेंज टू द इंटरनल सिक्योरिटी एंड द पीस प्रोसेस. ठीक है. इफ यू आर कंफर्टेबल विद द सिंपल हेडिंग्स, यूज दोज, कोई हार्म नहीं है. बट दिस इज समथिंग फ्रॉम जस्ट अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एज आई टोल्ड यू, राइट. देन ethnic conflict, we all know, multi-ethnic society, tribals, उनका खुद का एक कल्चर है, राइट. प्लस अब वहाँ पे माइग्रेंट्स भी हैं. इससे क्या हो गया, अल्टीमेटली देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट. सो challenges to the internal security and peace process again. Ethnic conflict, sub-regional conflict. देखिए, सब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली इट इज कॉन्फ्लिक्ट विथ द स्टेट. मे बी ऑटोनॉमिकली हो, है ना,
हमें पता है वी हैव द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, वो उनके फैसले खुद लेंगे, बट स्टिल देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट विद द स्टेट, विद इन द स्टेट, नॉट ऑन द नेशनल लेवल। इसलिए इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है, सब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, फ्रिक्शंस विद द एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, जो भी चीज़ें आप लिख सकते हैं। स्टेट स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट, आपको पता है हर नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैव द स्पेसिफिक प्रॉब्लम, किसी को डेवलपमेंटल इश्यूज है, कहीं पे डिफ़िकल्ट टेरेंस है तो वहाँ पे हाइडआउट्स होते हैं, कहीं कहीं पे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है ना। तो स्टेट स्पेसिफिक हमें सबको पता है। मान लीजिए कहीं आसाम में कोई प्रॉब्लम है, मेघालय में कुछ है, सबके अपने अपने प्रॉब्लम है, नॉट नेसेसरीली अगेंस्ट द सिक्योरिटी फोर्सेस ओनली, बट होता क्या है अल्टीमेटली इट हैम्पर्स और अफेक्ट्स द इंटरनल सिक्योरिटी एंड पीस प्रोसेस, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे आर लिंक्ड, है ना। तो उस तरीके से आप इसको लिखेंगे। देन लैक ऑफ डेवलपमेंट, अब ब्रॉडर टर्मिनोलॉजीज, ब्रॉडर मतलब मान लीजिए रोड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसके अलावा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है ना। तो ऐसे कुछ इश्यूज है, अ लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑन द लार्जर स्केल, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने इसके पहले क्या देखा, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर द ऑटोनॉमी, मे बी दे वांटेड टू गवर्न देमसेल्फ बाय देयर ट्राइबल रूल्स एंड रेगुलेशंस, कहीं पे डिफरेंट स्टेटहुड की डिमांड आ गई, कहीं पे एक फ्रिक्शन ग्रुप आ गया, इंसर्जेंट्स व्हाट वी कॉल, व्हाई अ सेंस ऑफ एलियनेशन। इसके अलावा अगर कुछ नहीं भी है तो लैक ऑफ डेवलपमेंट, इन जनरल डेवलपमेंट नहीं है ना। जैसे आपने देखा होगा नेपाल में जेनजीज रिवोल्यूशन, करप्शन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट एनालॉजी, इसमें और उसमें सिमिलैरिटीज़ नहीं है। आप सोचिए जब कोई चीज़ की कमी होती है, व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग, अ डिप्राइवेशन, इट लेड्स टू अ फ्रिक्शन, वो पॉइंट है, ठीक है। तो लैक ऑफ डेवलपमेंट अगेन दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ द चैलेंजेस which is being faced by the internal security aspects and the peace processes. What था, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया। सेकेंड पार्ट मैप द पीस अकॉर्ड्स एंड एग्रीमेंट्स, एक लास्ट डिकेड है ना, डिकेड की बात की हमने रफली, है ना। तो 2014 से लेके 2024 तक होने चाहिए, बट देखो दिस पार्ट इज मोर ऑन अ फैक्चुअल साइड। अल्टीमेटली इवन इफ समवन इज आस्किंग यू टू मैप आउट, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, कहाँ गया क्वेश्चन, यस, मैप द वेरियस पीस प्रोसेसेस, अकॉर्ड्स एंड एग्रीमेंट्स। अब कोई मैप करने बोले, हाईलाइट करने बोले या स्टेट करने बोले, अल्टीमेटली व्हेन समवन इज आस्किंग यू टू गिव द थिंग्स इन द पास्ट डिकेड, दिस फॉल्स ऑन अ मोर ऑन अ फैक्चुअल साइड। तो अब देखिए अगर फैक्ट है तो यू नीड टू नो, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इट। व्हाई? Even if you wanted to describe something in its core and understand, there is always a reason. हम क्यों लाते हैं peace accords and agreements? Simple reason है, to mainstream those population. Mainstream कैसे करेंगे? We'll ask them to surrender, है ना? Surrender करने बोला, abjure violence, ये जो है एक वायलेंस वाला रास्ता, तबाही का रास्ता, वो छोड़ दो, सरेंडर करो, इंटीग्रेट करेंगे हम आपको, वी विल प्रोवाइड यू फंड्स फॉर द डेवलपमेंट। अल्टीमेटली सबका यही है। When you talk about peace talks, क्या होता है? Be it the left wing extremist area, when the Maoist Naxalite they surrender, what we want कि भाई just give up your weapons, be a part of mainstream society, आप डेवलपमेंट का हिस्सा बनिए। तो डिस्क्रिप्शन में तो वही आना है। अल्टीमेटली ऐसा तो नहीं है कुछ कि भाई पीस अकॉर्ड से एग्रीमेंट साइन करके हमने आपको अलग से पूरा स्टेट दे दिया, हाँ चलो जाओ अब, नहीं, दैट इज नॉट हाउ वी आर वर्किंग हियर। सो वी हैव इनलिस्टेड सर्टेन थिंग्स in the nature of mapping it out. Okay, so NVC Peace Accord 2014 का है, अचिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल, फैक्ट पार्ट है। अल्टीमेटली सबका, जैसे मैंने आपको बताया, मेन स्ट्रीमिंग द सोसाइटी, ठीक है। देन वी हैव NLFT SD 2019 का है, ये नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा लेड बाय सबीर कुमार देबर्मा, इसलिए वो SD लिखा गया है। अगेन अ फैक्ट पार्ट, very much fact. Then ब्रू एग्रीमेंट 2020, of course सेटलमेंट की बात थी यहाँ पे, किसकी सेटलमेंट की? ब्रू फैमिली। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। वाई?
देखो वो पर्पज़ नहीं है। मैप करने बोल रहा है फ्यू प्रोसेसेस एंड एग्रीमेंट्स जो हमने पीस एस्टेब्लिश करने के लिए लिए थे, वी आर टॉकिंग अबाउट इट, एंड ऑफ कोर्स वी आर गिविंग अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हमको डिस्क्राइब तो करना है ना। डिटेल्स का मतलब ये नहीं कि पूरा हिस्ट्री बैकग्राउंड लिखेंगे, नो, क्योंकि डिकेड्स के सारे प्रोसेस को एनालिसिस करना है। सो फॉर दैट व्हाट वी एग्जैक्टली डूइंग हियर, वी आर जस्ट गिविंग फ्यू एग्रीमेंट्स इन लाइन। सो सेटलमेंट ऑफ द ब्रू फैमिली, बोरो पीस अकॉर्ड, अगेन एब्जर्ड वायलेंस, गिव अप योर वेपन, बी अ पार्ट ऑफ मेनस्ट्रीम डेवलपमेंट। करबी पीस अकॉर्ड, ईयर लिखे हैं ओनली टू ट्रेस दैट डिकेड ऑफ प्रोग्रेशन, नथिंग एल्स। Adirasi Peace Agreement 2022, then DNLA Peace Agreement, डिम्सा नेशनल लिबरेशन आर्मी। देखो वैसे ये फुल फॉर्म लिखना है तो लिख सकते हैं, बिकॉज समवन हु इज राइटिंग DNLA वो तब लिख रहा है व्हेन ही नोज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इट, क्योंकि देखो इट्स अ पार्ट ऑफ फैक्ट। कुछ फैक्ट चीज़ों को आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक विल बी देयर इन द ईयर कि कैसे, हाउ इट हैपेंड, अ इवोल्यूशन ऑफ अ पीस प्रोसेस, बट नाम तो नाम है, उसमें क्या ही हुआ, ठीक है ना। UNLF पीस एग्रीमेंट, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, और अगेन सेम यूनाइटेड नेशनल फ्रंट ऑफ आसाम, ठीक है, लास्ट वन हियर। And the last, the recent one, त्रिपुरा पीस अकॉर्ड 2024, ठीक है। इसके अलावा ऑफ कोर्स देखो इसमें कुछ है नहीं, बट अल्टीमेटली जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं क्या होता है, मेन स्ट्रीमिंग दी पॉपुलेशन। इनको क्या होगा, डेवलपमेंट फंड दिया जाएगा, यही है ना, गिव अप वायलेंस एंड वेपन्स, क्योंकि देखो हथियार के साथ बात नहीं होती पीस टॉक्स, यू हैव टू एब्जर्व इट, राइट। तो कुछ चीज़ें इस तरीके से है, बट एज आई टोल्ड यू इट्स मोर ऑन अ फैक्चुअल साइड, तो यू कांट हेल्प इट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कॉमन, जैसे हम सबको पता है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। चैलेंजेस क्या होते हैं हमें पता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वहाँ पे भी है, ड्रग मीनास है, एथिकल एथनिसिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ इट। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच यू कैन टॉक अबाउट। देन कम्स टू द कंक्लूजन पार्ट। अब कंक्लूजन में क्या है, द क्वेश्चन इज अबाउट इंसर्जेंसी, राइट। तो हमें ये बात करना है कि अल्टीमेटली द गवर्नमेंट हैव टू लिसन टू द नॉर्थ ईस्ट वॉइसेस वेयर दे कैन इन्वॉल्व देम इन अ प्रोग्रेसिव डिसीजन मेकिंग। सो inclusion in a progressive decision making by listening to the voice of northeast people, ultimately क्यों करना है ये, you have to bring transformation in northeast states. Why? देखिए, when you have a participatory governance, decision making based on the inclusion, transformation of course आएगा। ultimately this is the key to maintain the peace and overcome internal security challenges, ठीक है। So this is how you can end your conclusion. Otherwise the question is straightforward, appeared in this year examination mains, right? So this is all about it. Thank you everyone.